Welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss about polycythemia and its classification and polycythemia vera. Polycythemia, basically, as the name shows that the poly mean many, cyte means cell, hemia mean blood, polycythemia mean the blood cell number is increased. And the definition of polycythemia or erythrocytosis basically refers to an increase in the red blood cell mass, usually with a corresponding increase in the hemoglobin level. पॉलीसाइथीमिया के अंदर जो बेसिकली होता क्या है कि पोली मीन मैनी, साइट मीन सेल, हीमिया मीन ब्लड, कि इसके अंदर जो ब्लड सेल का जो काउंट है वो इंक्रीज कर जाता है। और जो ब्लड सेल का काउंट जो है उसके अंदर स्पेशली जो रेड ब्लड सेल है, increase of red blood cell is also called erythrocytosis. In erythrocytosis, basically RBC count is increased. तो पोलीसाइथीमिया के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल का मास इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एचबी का लेवल भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज कर जाता है। Polycythemia is classified into two groups: absolute polycythemia and relative polycythemia. Absolute mean true and poly mean many, cyte means cell, and hemia mean blood. True blood cell count is increased, and the absolute polycythemia is further subdivided into primary polycythemia and secondary polycythemia. First of all, we will discuss about absolute polycythemia. In absolute polycythemia, absolute mean true, poly mean increase, cyte means cell, hemia mean blood. In absolute polycythemia, true increase in total red cell mass. Absolute polycythemia is further subdivided into primary and secondary polycythemia. Primary polycythemia, what is the difference between the primary polycythemia and secondary polycythemia? Uh, in primary polycythemia, the erythropoietin level is decreased, and in secondary polycythemia, the erythropoietin level is increased. The example of primary polycythemia is polycythemia vera. It occurs due to intrinsic abnormality of the hematopoietic stem cell. Polycythemia vera is considered as one of the myeloproliferative neoplasm. Myelo mean myeloid, proliferative means self-replication, and neoplasm mean uncontrolled. Uncontrolled uh, self-replication of the myeloid basically lead to the production of increased red blood cell. In primary polycythemia, basically due to mutation in the gene that is coding to the hematopoietic stem cell or progenitors, due to which the erythropoietin level in our blood circulation remains same, but the production of RBC is increased due to mutation. In secondary polycythemia, it occurs due to compensatory response of red cell progenitors to an increase in erythropoietin secretion. The erythropoietin secretion may be physiological and pathological. Physiological in response to general chronic tissue hypoxia, and pathological as in paraneoplastic syndrome. In secondary polycythemia, keep in mind that कि ये बेसिकली इसके अंदर जो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, और एरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो है इंक्रीज करने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। लाइक अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर क्या है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, या कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको कोई लंग इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू द बॉडी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसलिए इस केस के अंदर क्या करता है कि जो हमारा जो बॉडी है वो हमारा जो हेमेटोपोइसिस जो है उसको एक्टिवेट करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी से रिलीज होता है, और वो जाकर जो हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल है उनके साथ बाइंड करता है, और वहां पे जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद relative polycythemia, as the name shows that relative mean the one thing is normal and the other thing is relatively increasing or decreasing. In relative polycythemia, basically
the plasma volume reduced, due to which the red blood cell count is automatically increased due to a decrease of plasma volume. It is characterized by a decreased plasma volume with a normal red cell mass. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर फ्लूइड भी होता है। अगर वो फ्लूइड लॉस होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सेल का काउंट रिलेटिवली इंक्रीज कर जाएगा, और इसकी हीमो कंसंट्रेशन की वजह से ये इंक्रीज कर सकता है, लाइक कोई डिहाइड्रेशन हो गई या डायरिया है, वोमिटिंग है, उसमें क्या होगा, जो फ्लूइड का लॉस जो है वो लीड करता है टू द relative polycythemia और increase of red blood cell in the blood circulation. जो गैस बॉक्स सिंड्रोम है बेसिकली ये स्पूरियस पॉलीसाइथीमिया है, और ये मिडिल एज्ड जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर इसको देखा गया, ओवरनाइट ओवरवेट हाइपरटेंसिव एंड एंक्सियस या स्ट्रेस्ड जो इंडिविजुअल है उनके अंदर भी ये इसको आइडेंटिफाई किया गया, डायग्नोस किया गया, और जो इसीलिए इसको स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। बट द रीजन of gas box syndrome is not clear, is not determined. अब हम चलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा की तरफ। जो पॉलीसाइथीमिया वेरा जो हमारा मेन फोकस है, जिस तरह हमने पहले भी इसको डिस्कस किया क्लासिफिकेशन के अंदर, जो प्राइमरी जो पॉलीसाइथीमिया होता है जिसके अंदर जो अरिथ्रोपोएटिन का लेवल जो है वो तो डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, लेकिन जो रेड ब्लड सेल का काउंट इसके अंदर इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि पॉलीसाइथीमिया वीरा की बेसिकली रीजन क्या है, ये किस तरह से होता है, इसका मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या है, एंड अदर सम अदर फाइंडिंग्स, और इनको हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि पॉलीसाइथीमिया वीरा की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि acquired myeloproliferative neoplasm arising from the malignant transformation of hematopoietic stem cell. Myelo mean myeloid, proliferative means self replication, and neoplasm mean the uncontrolled growth. तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो माइलाइट जो प्रोजिनेटर होते हैं वो इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो माइलाइट प्रोजिनेटर्स जो हैं ये बेसिकली इनकी प्रोलिफरेशन भी हो रही होती है, कि जो माइलाइट प्रोजिनेटर जो सेल होते हैं वो एक से दो और दो के अंदर चार के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन भी हो रही होती है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है कि अनकंट्रोल जो है जो सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ माइलाइट प्रोजिनेटर्स जो सेल होते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल जो है इसकी रीजन बेसिकली मालिग्नेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जो हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई मैलिग्नेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से ये फीचर जो प्रोजिनेटर सेल है माइलाइट प्रोजिनेटर जो सेल होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। Associated with mutation of erythropoietin receptor gene that lead to autonomous erythropoietin independent proliferation of red cell progenitors. इसके हम इन डिटेल इसको जो मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल रेड सेल जो प्रोजिनेटर्स होते हैं, रेड सेल जो प्रोजिनेटर्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर होता है, और वो एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर होता है जिसके साथ आकर जो एरिथ्रोपोइटिन है वो अटैच होती है, वो बाइंड करती है, और जब वो बाइंड करती है तो वहां से जो रेड सेल की जो प्रोडक्शन वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये जो एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर होता है, जिस जीन की वजह से जो एरिथ्रोपोइटिन जो रिसेप्टर है वो जीन जो इसको कोड करता है एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर को, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर होता है उसके अंदर भी अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और जिसकी वजह से उसके अंदर जो फंक्शंस है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको हम इन डिटेल इसकी जो मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। It is characterized by increased uncontrolled marrow production of red cell, granulocytes and platelets, panmyelosis. तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो मैरो प्रोडक्शन है, जो रेड सेल की जो बोन मैरो जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, और जो रेड सेल्स हैं वो कह लें कि उसकी जो प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसाइथीमिया वेरा अलोंग विद ग्रेनुलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स।
कि इसके अंदर जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं, लाइक हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल हैं, बेसोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, वो भी इंक्रीज करते हैं। और इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं उसका काउंट भी इंक्रीज हो सकता है। This lead to erythrocytosis, polycythemia. Erythrocytosis mean increase of red cell, that is called polycythemia, and or granulocytosis. Granulocytosis mean that count of WBC is increased, and the thrombocytosis means the count of platelet is increased when we see in the peripheral blood smear. But erythrocytosis is responsible for most of the clinical symptoms. जो जो रिथ्रोसाइटोसिस है, बेसिकली इसकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस के अंदर के जो पॉलीसाइथीमिया वेरा है वो बेसिकली होता कैसे है। कि हमारी जो हेमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल होते हैं वो नॉर्मली रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग आती है जिसकी वजह से जो हमारे जो हेमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल होते हैं वो अनकंट्रोल्ड एंड अनक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी रीजन क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वो क्या था, और उसके अंदर जो अबनॉर्मेलिटी आई है वो कहाँ पे आई। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले होता क्या है कि किडनी जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। दिस एरिथ्रोपोइटिन come in contact with erythropoietin receptor. These erythropoietin receptors are present over the surface of the hematopoietic stem cell. हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, बोन मैरो के अंदर जो मौजूद होते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर जो एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिनके साथ आके एरिथ्रोपोइटिन बाइंड करता है। जैसे ही एरिथ्रोपोइटिन आके बाइंड करता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के साथ, तो फिर क्या होता है कि जो हेमेटोपोएटिक जो एरिथ्रोपोइटिन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद प्रोटीन काइनेज कॉल्ड जैक, जिसकी फास्फोरिलेशन होती है। जब फास्फोरिलेशन ऑफ रिसेप्टर अक्कर्स, जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो उसके ऊपर उसकी फास्फोरिलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिशिएट्स एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन स्टैट। तो इससे क्या होता है कि स्टैट जो प्रोटीन है ये प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे आपने ये चीज जहन के अंदर रखनी है कि सबसे पहले क्या कि किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन रिलीज किया, वो एरिथ्रोपोइटिन आया आकर जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल था उसकी सरफेस के ऊपर जो एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर मौजूद थे उसके साथ आके उसने बाइंड किया। जो एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर्स के अंदर जैंसन काइनेज प्रोटीन मौजूद होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड जैक। ये जो जैक होती है ये बेसिकली जाके आगे दो काम करती है। सबसे पहले तो ये करती है कि ये जो प्रोटीन होती है स्टैट, इसको एक्टिवेट करती है, और इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करती है, और साथ में जो एचसीपी जो हेमेटोपोएटिक सेल फास्फेटेज होता है उसको भी ये एक्टिवेट करती है। तो जैक जो होती है ये दो काम करती है। सबसे पहले क्या करती है कि जो स्टैट प्रोटीन है इनिशिएट्स एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन जो है उसको ये एक्टिवेट करती है वो स्टैट, और साथ में क्या करती है कि जो हेमेटोपोएटिक जो सेल फास्फेटेज है उनको भी ये एक्टिवेट कर देती है। अब ये दो चीजें जो है किसने एक्टिवेट की हैं, जैंसन काइनेज प्रोटीन ने, जो कहाँ मौजूद है, जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के जो रिसेप्टर उनके साथ ये अटैच है। अब जो स्टैट है ये बेसिकली come in contact with DNA that is present inside the nucleus of the hematopoietic stem cell, और ये जो स्टैट है वो आके डीएनए के साथ बाइंड करती है, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वो स्टार्ट हो जाती है, और उसी के नतीजे के अंदर क्या है कि प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एरिथ्राइड जो प्रोजिनेटर्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है। What is the difference between the proliferation and differentiation of erythroid progenitor? इसका मतलब यह है कि जो erythroid progenitors हैं वो प्रोजिनेटर्स जो रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक तो उसकी प्रोलिफरेशन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। इसका मतलब यह है कि एरिथ्राइड प्रोजिनेटर जो है एक तो वो सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं कि वो अपनी ही कापियां बना रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं कि वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं किसके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। और उसके बाद जो दूसरी एचसीपी है हेमेटोपोएटिक जो सेल फास्फेटेज है,
ये जाती है जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है इसके जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के ऊपर दो चीजें मौजूद है, एक तो जैक काइनेज प्रोटीन मौजूद है और दूसरी साइड पे सी टर्मिनल इसका मौजूद होता है। तो ये एससीपी जाके जो सी टर्मिनल उसके साथ बाइंड करती है और करने के बाद क्या करती है, ये बेसिकली जो डाउन रेगुलेशन होती है उसको ये कंट्रोल करती है, डाउन रेगुलेशन को लीड करती है। और ये जो क्या करती है कि जो मेटोपोटिक जो स्टेम सेल जो रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको ये प्रिवेंट करती है और उसको जो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज स्टॉप्ड by binding the HCP protein with C terminal that is present over the surface of the erythropoietin receptor। तो ये बेसिकली इसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है। और इस तरह से जो हमारे कह लें कि जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसके जरिए से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है और उसको जो जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो बेसिकली दो तरीकों से है, एक तो जैक और सेकंड एचसीपी। अच्छा, अब जो है इसके अंदर कौन सी ऐसी चेंजिंग आती है जिसकी वजह से जो बॉडी जो है वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अकर्ड इन आवर बॉडी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सो सिंपल। इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया वीरा के केस के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन जो है वो एरिथ्रोपोएटिन जो रिसेप्टर जीन है उनके अंदर होती है। अब जीन के अंदर जब म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सी टर्मिनल है वो एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के ऊपर गायब हो जाता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। अब ये सी टर्मिनल वही है जहां पे आके एचसीपी प्रोटीन ने बाइंड करना था और जिसने एचसीपी प्रोटीन ने जब आकर सी टर्मिनल के साथ बाइंड करना था तो उससे क्या होना था, डाउन रेगुलेशन होनी थी। तो अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो वो पोर्शन या सी टर्मिनल भी बेसिकली जो एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर है उसका पार्ट है, वहां पे क्या हुआ, म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब एचसीपी जो है वो जाके सी टर्मिनल के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, डाउन रेगुलेशन नहीं होगी। जब डाउन रेगुलेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि एरिथ्रोपोएटिन जो है वो एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के साथ चाहे वो अटैच हो या ना हो, लेकिन जो जैक या जेंसन काइनेज जो प्रोटीन है दैट इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, वो स्टैट को एक्टिवेट करती जाएगी और स्टैट जाके डीएनए को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती रहेगी। तो अब यहाँ पे जो इनहिबिशन या डाउन रेगुलेशन है उसका वो जो स्टेप हो वो यहाँ पे नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो होती है। अब यह क्या कि सी टर्मिनल ऑफ द एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर काज एक्टिवेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर इवन विदाउट एरिथ्रोपोएटिन। अब इसके अंदर ये लाजमी नहीं है कि एरिथ्रोपोएटिन जो है वो एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो और फिर जो जैक प्रोटीन जो इसके रिसेप्टर के ऊपर मौजूद है वो एक्टिवेट करे। इसके अंदर वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूटेड जैक सिग्नल, जो जैक होता है वो कॉन्टिन्यूसली वो सिग्नल भेजता जाता है, स्टैट जो है उसको प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिथ्राइड प्रोजेनेटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। There is an erythropoietin independent growth of red cell progenitors with low serum erythropoietin levels in polycythemia vera। इसके अंदर क्या होता है कि जो सीरम होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो एरिथ्रोपोएटिन का लेवल तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल का जो मास है वो इंक्रीज कर जाता है। तो उसकी रीजन बेसिकली यही होती है कि इसके अंदर जो रेड सेल प्रोडक्शन है वो एरिथ्रोपोएटिन इंडिपेंडेंट हो रही है, कि वो एरिथ्रोपोएटिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है। और जिस म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो सीरम एरिथ्रोपोएटिन लेवल है वो तो लो होता है, लेकिन जो रेड सेल का काउंट है वो इंक्रीज कर जाता है। अब हम इसको एक डायग्राम से देखेंगे। इस डायग्राम के अंदर दोनों मैकेनिज्म शो किया गया, एक तरफ जो नॉर्मल है और दूसरी तरफ अब नॉर्मल है। अब ये अगर आप नॉर्मल के अंदर देखेंगे तो बेसिकली ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, हेमाटोपोएटिक जो स्टेम सेल है, और इसके ऊपर ये एरिथ्रोपोएटिन आता है। एरिथ्रोपोएटिन आकर क्या कहता है कि जो एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर है जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर ये मौजूद है उनके साथ आकर बाइंड करता है। तो अब जैसे ही एरिथ्रोपोएटिन आकर एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर के साथ दो आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं।
वन इज जैक जेंसर काइनेज प्रोटीन है, और द सेकंड वन इज HCP हेमेटोपोएटिक सेल फास्फेटेज इन येलो कलर इज अटैच्ड विद द एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर। तो जैसे ही ये एरिथ्रोपोएटिन come in contact with the erythropoietin receptor, then it activates the Janssen kinase protein. This protein come into the plasma, into the cytoplasm. This protein come into the cytoplasm and activate two pathway. The first one is STAT and the second one is HCP. This STAT come inside the nucleus and bind with the DNA, and then start the transcription and translation and production of protein. And the other protein, hematopoietic cell phosphatase, this protein come in contact with C terminal of the erythropoietin receptors, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करे, डाउन रेगुलेट कर देता है, और ये जो जैक जो आपकी स्टैट प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये उसको जाके स्टॉप कर देता है, कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये सी टर्मिनल बेसिकली ओवरकम द जेंसन काइनेज प्रोटीन टू प्रोड्यूस एंड आल्सो इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ स्टैट। जब स्टैट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जारी बात है कि जो रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगी। अच्छा, अब ये तो एक नॉर्मल केस था कि नॉर्मल केस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एरिथ्रोपोएटिन, किडनी ने एरिथ्रोपोएटिन रिलीज किया, वो आया आके हेमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल है उसके जो एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर है उसके साथ आकर इसने बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो दो टर्मिनल आपको नजर आ रहे, सी टर्मिनल एंड जैक जेंसन काइनेज प्रोटीन, वो मौजूद होती है। ये जेंसन काइनेज प्रोटीन जो है ये क्या करती है, आगे एक्टिवेट कर देती है स्टैट को और साथ में HCP को। अब जब स्टैट प्रोड्यूस हुआ, दिस स्टैट कम इनटू द न्यूक्लियस एंड बाइंड विद द DNA, एंड दिस DNA एक्टिवेट कन्वर्ट इनटू द मैसेंजर RNA एंड प्रोटीन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और जाकर फिर क्या करते, ये एरिथ्राइड जो प्रोजेनिटर जो सेल होते हैं ये उनको प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएट स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जेंसन काइनेज प्रोटीन आल्सो एक्टिवेट द हेमेटोपोएटिक सेल फास्फेटेज प्रोटीन। दिस प्रोटीन कम इन कांटेक्ट विद सी टर्मिनल दैट इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर, और ये जो सी टर्मिनल के ऊपर जो मौजूद है, जैसे ही आके HCP इसके साथ बाइंड करता है तो ये डाउन रेगुलेशन स्टार्ट कर देती है किसकी, जेंसन काइनेज प्रोटीन की, और जो फिर क्या होता है कि जेंसन काइनेज प्रोटीन जो है वो फर्दर स्टैट प्रोड्यूस नहीं करती और ना ही HCP प्रोड्यूस होता है। ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म था। अब नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एरिथ्रोपोएटिन है वो आता है, आकर एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के साथ बाइंड तो कर रहा है, यहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन आया, एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के साथ इसने आके बाइंड किया। अब जो एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के ऊपर जो जेंसन काइनेज प्रोटीन थी उसने क्या किया, उसने जो एक्टिवेट किया किसको, स्टैट को एक्टिवेट किया और HCP को एक्टिवेट किया। ये जो एक्टिवेट जो स्टैट है वो आया न्यूक्लियस के अंदर एंड आल्सो बाइंड विद द DNA एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस the protein. This protein come and then produce the erythroid progenitor cell. The progenitor cells are further divided into two groups. One is self-replication and the other one is differentiation. और अब जो स्टैट जो है वो तो न्यूक्लियस के साथ आके बाइंड कर गई, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें जो प्रोटीन थी, सॉरी जो जीन था, जिस जीन की वजह जो जीन इस एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर को कोड कर रहा था उसके अंदर म्यूटेशन होगी। उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि जो सी टर्मिनल था वो इनएक्टिव बन गया, नो सी टर्मिनल, यहाँ पे कोई सी टर्मिनल नहीं है। अब ये जो HCP आई और आकर जब वो उसने सी टर्मिनल के साथ बाइंड करने की कोशिश की, तो क्योंकि वहां पे म्यूटेशन होने की वजह से जो सी टर्मिनल है वो डिसअपियर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि HCP सी टर्मिनल के साथ बाइंड नहीं कर पाती और जिसकी वजह से डाउन रेगुलेशन नहीं होती। और जो जेंसन काइनेज है वो क्या करता है कि एदर यहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन मौजूद हो या ना हो, लेकिन जेंसन काइनेज जो है कॉन्टिन्यूसली स्टैट प्रोड्यूस कर रहा है और HCP प्रोड्यूस कर रहा है। HCP जो है वो बेसिकली इनएफेक्टिव होता है जिसकी वजह से डाउन रेगुलेशन नहीं होती, लेकिन जो स्टैट होता है वो जाता है न्यूक्लियस के पास और यहाँ पे जो वो फर्दर जो है रेड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर देता है। तो अब जो जेंसन काइनेज है ये डिपेंडेंट नहीं होती एरिथ्रोपोएटिन के ऊपर कि एरिथ्रोपोएटिन मौजूद हो या ना हो, लेकिन जो सी टर्मिनल है बेसिकली ये डिपेंड
इसके ऊपर ये डिपेंडेंट होती है कि जब तक सी टर्मिनल से कोई सिग्नल इसको नहीं मिलता ये स्टैट को प्रोड्यूस करना बंद नहीं करता। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल और अबनॉर्मल इसका जो मैकेनिज्म था और ये बेसिकली पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर होता है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्लेथोरा है, ए मॉर्बिड कंडीशन ड्यू टू एक्सेस ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड और इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ब्लड। तो ये एक कह लें कि मॉर्बिड कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल का जो मास है वो इंक्रीज कर जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। And the second one is cyanosis. Cyanosis basically is due to stagnation and deoxygenation of blood in peripheral vessels are rare are early finding. तो साइनोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं लाइक फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से स्टैग्नेशन यानी कि जो ब्लड की जो थिकनेस है या विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। वो विस्कोसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है कि जो ब्लड हमारी फिंगर्स के अंदर मौजूद होता है वो तो हमारी फिंगर्स के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं वो ब्लड के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वहीं पे स्टक हो जाता है। वो थिकनेस ऑफ ब्लड जो है वो बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो वापस मूव नहीं कर पाता और जिसकी वजह से क्या होता है कि साइनोसिस के केस के अंदर क्या होता है कि जो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है बिकम ब्लू इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से क्या होता है कि वो ब्लू हो जाते हैं। अब अगर यही जो प्रॉब्लम जो वेस्कुलर जो डिस्टर्बेंस है जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्लड के थिकनेस होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से अगर ये डिस्टर्बेंस बेसिकली अगर ये ब्रेन के अंदर हो या रेटिना के अंदर हो तो वो लीड करती है टू द हेडेक, डिजीनेस एंड विजुअल प्रॉब्लम्स। और उसके बाद the elevated hematocrit results in increased blood viscosity and slugging। इसके अंदर जो जैसे ही रेड ब्लड सेल का मास इंक्रीज करता है, ये ध्यान में रखें कि जो रेड ब्लड सेल हेमाटोक्राइट क्या होता है। हेमाटोक्राइट बेसिकली अगर हमारे पास हमने 5 ml ब्लड को हमने विदड्रॉ किया एक कंटेनर के अंदर या जो वाइल के अंदर हम अगर हम 5 ml ब्लड लिया और उसके अंदर जो पैलेट बन जाए रेड ब्लड सेल मास जो है अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल मास होता है वो बेसिकली उसको हम हेमाटोक्राइट कहते हैं। कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ रेड ब्लड सेल मास इज प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड हेमाटोक्राइट। हेमाटोक्राइट वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट इन द परसेंटेज। तो जो हेमाटोक्राइट की वैल्यू होती है उसको हम परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एलिवेटेड इंक्रीज्ड हेमाटोक्राइट रिजल्ट, जारी बात है पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हेमाटोक्राइट है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड की विस्कोसिटी और इंक्रीज कर जाती है। अगर इन फैक्टर्स के साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोसिस मीन के प्लेटलेट का काउंट भी इंक्रीज हो जाए, तो जिसकी वजह से अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो अब क्या होगा कि ये जो इंक्रीज इन इन प्लेटलेट काउंट बेसिकली लीड टू द जो कोगुलेशन है, थ्रोम्बोसिस है, उसको ये लीड करेगा। तो अब प्लेटलेट का काउंट एंड abnormal platelet function predisposed to thrombotic episode. These episode may manifest as deep venous thrombosis. अब इसमें क्या होगा कि abnormal जो है ब्लड क्लॉट वो बन जाएंगे। अब इससे क्या होगा जब abnormal ब्लड क्लॉट बनेंगे तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस और हेमाटोसिस के अंदर जो डिफरेंस है, थ्रोम्बोसिस बेसिकली होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बनते हैं उनको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और इन केस ऑफ एनी इंजरी और ट्रॉमा, उस केस के अंदर जो ब्लड क्लॉट बनता है टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, वो बेसिकली जो क्लॉट होता है वो जो हमारी बॉडी से जो ब्लड फ्लो हो रहा था या लॉस हो रहा था ये उसको प्रिवेंट करता है। दैट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस के अंदर डिफरेंस है। थ्रोम्बोसिस बेसिकली इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड हीमोस्टेसिस इज ए नॉर्मल कंडीशन। तो थ्रोम्बोसिस जो है अगर जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वेसल वॉल के अंदर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है कि छोटे छोटे क्लॉट बन जाए तो वो बेसिकली मियोकार्डियल इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। और इसके अलावा थ्रोम्बस ऑफ हेपेटिक वेन्स जो है
प्रोड्यूसिंग बट चेरी सिंड्रोम काज कर सकते हैं, द पोर्टल एंड mesenteric vein thrombosis leading to bole infarction, and the venous cyanosis of the brain leading to hemorrhagic stroke. अब ये थे बेसिकली इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स। अब हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग पढ़ेंगे कि अगर हम इसको लैब के अंदर डायग्नोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड को देखेंगे। तो अब पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या हुआ कि पॉलीसाइथीमिया वीरा के अंदर क्या हुआ कि जो रेड ब्लड सेल का मास है वो इंक्रीज कर गया, और इसके अलावा इसके जब रेड ब्लड सेल का मास इंक्रीज करेगा तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा। जब रेड ब्लड सेल का मास इंक्रीज करेगा तो उसके साथ हेमाटोक्रोट जो है वो भी इंक्रीज कर जाएंगे, और आरबीसी का काउंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो और ये जो अगर ये कंडीशन जो है चलती है और लॉन्ग टर्म चलती है तो इसकी फिर आगे डिफरेंट ये फेजेस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, और इवन ये ल्यूकेमिया भी काज कर सकती है। और इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्लेटलेट का काउंट है वो नॉर्मल भी हो सकता है और अब नॉर्मल भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो इंक्रीज कर जाती है मेल के अंदर, ये बेसिकली greater than 18.5 gram per deciliter, and in female this value is increased more than 16.5 gram per deciliter. Hematocrit value is increased to about 60%. नॉर्मली जो हेमाटोक्रेट की वैल्यू है वो 45% तक होती है, अराउंड अबाउट 45 टू 50% तक। लेकिन इसके अंदर जो 60% से भी ये ज्यादा इंक्रीज कर जाती है कि रेड ब्लड सेल इतनी अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो इंक्रीज कर जाता है, और इसकी जो वैल्यू हो वो 6 × 10⁻12 पर लीटर से भी ये इंक्रीज कर जाता है। और डब्ल्यूबीसी का काउंट और प्लेटलेट काउंट ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली जो पेरिफेरल ब्लड। और इसके अलावा जो पेरिफेरल स्मीयर है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जो आरबीसीज होते हैं ये नॉर्मल होते हैं और नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। इनके अंदर जो पेयर रेड कलर होता है वो भी नॉर्मल होता है, और इसका जो साइज है वो भी नॉर्मल होता है। और डब्ल्यूबीसीज के केस के अंदर क्या होता है कि पॉलीसाइथेमिया वेरा के केस के अंदर क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी या टोटल लिकोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड, देयर इज माइल्ड मॉडरेट लिकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया आर मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल, बेसोफिल्स ओपन इंक्रीज्ड। ये बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करते हैं, और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के जो कह लें कि 5 टाइप्स होती हैं, और उनमें से कौन कौन सी इंक्रीज करती हैं और कौन कौन सी नॉर्मल रहती हैं। तो वो बेसिकली ये जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के जरिए से हम इससे भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और द थर्ड वन इज प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है ऑफन जो अबनॉर्मली लार्ज एंड फंक्शनली डिफेक्टिव, और ये डिफेक्ट जो फंक्शन उसको लीड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस बनता है। थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस और हेमोरेजिक स्ट्रोक को ये लीड करते हैं। तो जब हम थर्ड नंबर पे जब हम बोन मैरो की बात करें तो इसके अंदर सेलुलरिटी है वो हाइपोसेलुलर होते हैं, कि ये हाईली एक्टिव होते हैं, और ये more and more production of erythroid progenitor cell is occurred by the hematopoietic stem cell. Bone marrow biopsy के अंदर it shows increased reticulin fibers and fibrosis, moderate to marked increase in marrow reticulin fibers is observed in approximately 10% of the patients. Late in the course, it can progress to a spent phase characterized by extensive marrow fibrosis that displays hematopoietic cells. This is associated with extramedullary hematopoiesis. Extramedullary जो हेमाटोपोइसिस बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो है वो बेसिकली हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल प्रोड्यूस करता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं लाइक स्प्लीन है या लीवर है जो स्टेम सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस बोलेंगे। कि स्प्लीन और जो लीवर है और या लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो वहां से जो स्टेम सेल प्रोड्यूस होते हैं और उनसे जो ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, इस सारे प्रोसीजर को हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। अब होता क्या है कि पॉलीसाइथेमिया वेरा के केस के अंदर जो हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल है वो कह लें कि इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या उनके अंदर जो वर्कआउट करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और कंप्रोमाइज कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे का सारा बॉडी के अंदर जो आरबीसी की जो प्रोडक्शन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी बॉडी के अंदर अदर देन बोन मैरो जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं लाइक आपके लीवर है, स्प्लीन है,
इनकी तरफ चली जाती है और वो हेमेटोपोइसिस जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये सारा बर्डन लीवर्स के ऊपर पड़ता है या सप्लीन के ऊपर पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि उनके जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। दैट काजेज हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। Uncommonly, transformation to AML also occurs. अब ये तो कुछ इसके अलावा कुछ अदर फाइंडिंग्स भी है जिनके जरिए से हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले जो आर्टिरियल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, इट इज नॉर्मल 75 टू 100 मिलीमीटर पर मर्करी जो है, एंड इज यूजफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम स्कंडी पॉलीसाइथीमिया। तो अब यहाँ पे ये चीज जहन में रखनी है कि जो आर्टिरियल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये नॉर्मल होती है पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस के अंदर, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है। और जो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, इसके अंदर क्या होता है कि एरिथ्रोपोएटिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, और उसको हम सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है उसको कहा था। और ये सेकेंडरी और प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेस्ट। आर्टीरियल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन के जरिए से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्यों कि प्राइमरी जो पॉलीसाइथीमिया लाइक जो पॉलीसाइथीमिया वेरा उसके अंदर इसकी वैल्यू नॉर्मल होगी, लेकिन जो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इसके अंदर इसकी वैल्यू इंक्रीज्ड होगी। इसके अलावा जो एरिथ्रोपोएटिन लेवल है, ये क्योंकि पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है, इसके अंदर जो हमने बात की कि जो एरिथ्रोपोएटिन का लेवल है वो डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन है या कह लें कि हेमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल है वो जो हमने पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर देखा, जो स्टैट प्रोड्यूस हो रही थी उसको जैनसन काइनेज प्रोड्यूस कर रहा था, और जैनसन काइनेज जो है वो डिपेंडेंट नहीं है एरिथ्रोपोएटिन के ऊपर। तो इसलिए सी टर्मिनल के अंदर जैसे ही म्यूटेशन आई तो जो जैनसन काइनेज प्रोटीन है उसे इंडिपेंडेंटली कह लें कि उसने चाहे वहां पे एरिथ्रोपोएटिन मौजूद था या नहीं था, लेकिन उसने कॉन्टिन्यूसली जो स्टैट है उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सीरम विटामिन B12 एंड यूरिक एसिड है, दे आर इंक्रीज इंडिकेटिंग इंक्रीज्ड सेल टर्नओवर। और उसके अलावा जैनसन काइनेज 2 V617F और another functionally similar mutation they can be demonstrated. तो V617F का मतलब ये है कि जैनसन काइनेज 2 जो है इसके अंदर जो म्यूटेशन हुई है वो म्यूटेशन इस तरह से हुई है इस जीन के अंदर कि ये जैनसन एक जीन था वो जैनसन काइनेज को कोड करा था, तो उसके अंदर वेलाइन मौजूद था। वेलाइन जो है इसके जीन की 617 पोजीशन के ऊपर मौजूद था, वो फिनाइल एलानाइन के साथ रिप्लेस हो गया, इसके अंदर म्यूटेशन होगी। तो जैसे ही जैनसन काइनेज जो कि एक नॉर्मल जीन था उसके अंदर क्या हुआ कि उस जीन के 617 पोजीशन के ऊपर वेलाइन मौजूद था, वो रिप्लेस हो गया फिनाइल एलानाइन से। उससे रिप्लेस हुआ तो अब जो जैनसन काइनेज जो मौजूद था उसके अंदर अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, रिसेप्टर के अंदर अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो बेसिकली ये सारे का सारा पॉलीसाइथेमिया वेरा, और इसके अलावा उसकी जो डेफिनेशन क्या है, उसका मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस क्या है, और इसको क्लिनिकल फीचर्स क्या है, और इसके अलावा इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग एंड सम अदर फाइंडिंग्स जो पॉलीसाइथीमिया वेरा उसको किस तरह से हम डायग्नोज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और किस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो पॉलीसाइथीमिया उसको डिफरेंशिएट करते हैं आर्टेरियल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट है उसके जरिए से। और ये सारे का सारा जो पॉलीसाइथीमिया के ऊपर था। और इसके अलावा थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा।